بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 10 آیات 70 تا 72۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، یعلمی معلوم کرے گا، خیرن نیکی یا بھلائی، یؤتکم تمہیں عنایت فرمائے گا، وہ تمہیں دے گا، وہ تمہیں عطا کرے گا، اخذ لیا گیا یا چھن گیا، یریدو خیانتک وہ تم سے دغا کرنا چاہیں، یریدو وہ چاہیں، خیانتک تم سے دغا کرنا، یریدو خیانتک وہ تم سے دغا کرنا چاہیں، خانو ماضی کا صیغہ ہے، وہ دغا کر چکے، وہ خیانت کر چکے، فامکن سو اس نے قبضہ میں کر دیا، ہاجرو وطن سے ہجرت کر گئے، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، انفسہم ان کی جان، ان کے نفس، آوو جگہ دی، پناہ دی، ناصرو انہوں نے مدد کی، اولیاء رفیق دوست کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، معاون و حمایتی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، لا یاتہم ان کی رفاقت، استنصروکم وہ تم سے مدد طلب کریں، اور اگر ہو استنصرو تو اس کا معنی ہوگا انہوں نے مدد چاہی، انہوں نے مدد طلب کی، علیکم تم پر، النصر مدد کرنا، بینکم تمہارے درمیان، بینہم ان کے درمیان، میثاقن عہد جو صلح کا عہد ہو، تعملون تم کام کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیات کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات دیکھیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھ میں ہیں، فی کا معنی میں، کون، من الاسری قیدیوں میں سے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ان اگر، یعلم اللہ اللہ معلوم کرے گا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بھلائی نیکی، یؤتکم تو بدلہ کیا دیا جائے گا اگر نیکی معلوم ہو جائے گی، یؤتکم وہ تمہیں دے گا، خیرن بہتر، مما اس سے جو، اخذا لیا گیا، چھن گیا، منکم تم سے، جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بھی بہتر عنایت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور دوسرا جو انعام ہوگا وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدیوں کے بارے میں ہدایت دی ہے
कल के सबक में हमने पढ़ा था कि जो कैदी गिरफ्तार हुए थे उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की राय पर अमल करते हुए और कसीर साहबा की राय पर अमल करते हुए फ़िद्या लेकर उन्हें आज़ाद कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी यहाँ पर थोड़े से नाराज़गी का भी इजहार किया था कि अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी कि उनको कत्ल कर दिया जाए। अब इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिन कैदियों ने तुम्हें फ़िद्या देकर आज़ादी हासिल की है, अगर तो वो सच्चे मुसलमान हुए हैं, उनके दिलों में कोई शरारत नहीं है, तो फ़ाबिहा, उनके गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे और जो माल उनसे फ़िद्या के तौर पर लिया गया है अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी उस माल से बेहतर उन्हें अता करेगा। तो इस आयत में खैरन से मुराद वही भलाई है कि हकीकत में मुसलमान हो। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि जंग बदर में हज़रत अब्बास जब कैदी होकर आए थे तो उस वक़्त वो मुसलमान नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़िद्या का मुतालबा किया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था, मैं मुसलमान होना चाहता था, मेरे कबीले के लोग मुझे ज़बरदस्ती जो है ना वो इस जंग में लेकर आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहरहाल जो भी सूरत थी, अब तुम्हें अपना फ़िद्या भी देना पड़ेगा और अपने दो भतीजों का भी जो है ना वो फ़िद्या तुम्हें, नौफल और अकील, ये दो भतीजे थे हज़रत अब्बास के, कि इन दो लोगों का भी आपको फ़िद्या देना पड़ेगा। तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं इतनी रकम कहाँ से लूँ, मैं अपना फ़िद्या नहीं दे सकता और दो भतीजों का फ़िद्या भी अदा करूँ। तो आपने फरमाया कि वो रकम कहाँ है जो तुम अपनी बीवी उम्मुल फ़ज़ल के पास जो है ना वो क्या है छोड़ कर आए हो। तो यहाँ पर हज़रत अब्बास जो है ना वो थोड़ा हक्का बक्का रह गए, हैरान हुए कि इस रकम का इल्म तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन जो है ना वो क्या हो गए, कलमा गो हो गए। उन्होंने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो ये जो है ना नतीजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिला रहमी का या फित्री रहमत का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ की थी। दूसरी आयत, व इन युरीदू खियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन, और अगर, युरीदू वो चाहें, खियानतका तुमको दगा देना, फ़क़द पस तहक़ीक़, ख़ानुल्लाह वो अल्लाह से दगा कर चुके हैं, मिन क़ब्लु इससे पहले, फ़अमकना पस उसने कब्ज़ा में कर दिया, मिनहुम उनको, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और अगर ये लोग तुमको दगा देना चाहें तो ये खुदा से पहले भी दगा कर चुके हैं, तो उसने इनको तुम्हारे कब्ज़ा में कर दिया। अब इस आयत में ये फरमाया जा रहा है कि जिन लोगों ने फ़िद्या देकर आज़ादी हासिल की है और उन्होंने ये कह दिया कि हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन उनके दिलों में शरारत थी, यानी मुनाफ़क़त अख्तियार कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में अगर वो दोबारा आपको दगा देने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले भी वो अल्लाह को दगा दे चुके हैं और उसके बदले में क्या किया कि अल्लाह ताला ने उन दगाबाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैदी बना दिया। अगर ये दोबारा यही हरकत करेंगे तो फिर दोबारा भी इनको क्या कर दिया जाएगा, कैदी बना दिया जाएगा, क्योंकि खुदा तो दिलों की बातों से खूब वाकिफ़ है कि उनके दिलों में क्या है, वो हकीकत में ईमान लाए हैं या कोई शरारत के तौर पर ईमान लाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और वतन से हिजरत कर गए, वजाहदू और उन्होंने जिहाद किया, बिअमवालिहिम अपने माल से, व अनफुसिहिम और अपनी जानों से, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने आवो जगह दी या पनाह दी, व नसरू और मदद की, उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़, यही वो लोग हैं जो उनके बाज़ के क्या हैं, रफ़ीक हैं, दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू और उन्होंने हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायतिहिम नहीं है तुमको उनकी रफ़ाकत से, मिन शैइन कुछ सरोकार, हत्ता युहाजिरू यहाँ तक कि वो हिजरत करें, व इन और अगर इस्तनसरुकुम वो तुमसे मदद तलब करें, फिद्दीन दीन के मामले में,
फ़अलैकुम, पस तुम पर लाजिम है, अन्नस्रु, उनकी मदद करना, इल्ला अला कौमिन, मगर ऐसी कौम पर, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मीसाकुन, कोई अहद हो चुका हो, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह उन आमाल को देख रहा है जो तुम करते हो। जो लोग ईमान लाए, वतन से हिजरत की और खुदा की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, तो यही सच्चे मोमिन हैं। अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला हिजरत और नुसरत के बारे में बातें इरशाद फरमा रहे हैं, और इस आयत में वरासत के हुकूक भी बयान हो रहे हैं कि जो लोग इब्तदा में ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर हिजरत भी की और अपने माल और अपने जान के ज़रिए से अल्लाह की राह में जिहाद भी करते हैं, अब ये लोग जब मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं तो मदीना के जो मुसलमान हैं वो क्या करते हैं, इनको जगह देते हैं और इनकी मदद भी करते हैं, तो ये एक दूसरे के रफ़ीक हैं। यानी ऐसी सूरत में अब चूँकि मुसलमान मक्का से हिजरत कर गए मदीना में, अब मक्का में अगरचे मुसलमान थे लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की थी, तो अब वो मुहाजिरीन के वरासत के हक़ में शामिल नहीं होंगे। अब वरासत के जो हक़दार होंगे एक दूसरे के, वो अंसार और मुहाजिर होंगे। तो अब उनके हिजरत ईमान अगरचे ईमान ले हैं लेकिन हिजरत ना करने की वजह से, अब अगर मुहाजिरीन मक्का में से कोई फौत हो जाता है तो मक्का में जो रहने वाले मुसलमान हैं या काफिर हैं वो उनकी विरासत में शामिल नहीं होंगे। अब अगर विरासत में शामिल होंगे मुहाजिरीन के, तो वो कौन होंगे, अंसार जो है ना, उनके क्या होंगे, विरासत में शामिल होंगे। और आगे फरमाया कि और वो लोग जो ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की। अब अगर एक शख्स ईमान ले आया है लेकिन वो वतन से हिजरत नहीं करता, जब हिजरत नहीं की तो अल्लाह की राह में वो जिहाद भी नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ऐसे लोगों की रफ़ाकत से भी हमें कोई सरोकार नहीं है जब तक कि वो हिजरत नहीं करेंगे। यानी फिर वो तो किसी भी सूरत में किसी भी माल में शामिल नहीं होंगे। अब अगर ये जो मक्का में मोमिन ईमान लाए हैं लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, अब अगर वो मुहाजिरीन मक्का जो मदीना में पहुँचे हुए हैं अगर उनसे मदद तलब करते हैं, तो मुहाजिरीन मक्का जो मदीना में मौजूद हैं उन पर लाजिम है कि वो मोमिन जो मक्का के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अभी तक हिजरत नहीं की, उनकी मदद करें। लेकिन अगर मुहाजिरीन मक्का जो मदीना के अंदर मौजूद हैं उन्होंने उन कुफार से मुआहिदा किया हुआ है जो कुफार मक्का में रहने वाले मोमिनों के साथ जंग कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये मुहाजिरीन मक्का जो मदीना में रहने वाले हैं मक्का के मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। इसलिए कि अगर ये मुहाजिरीन क्या करते हैं, सुलह की खिलाफ वर्जी करते हैं, उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ऐसी सूरत में ज़मीन में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा हो सकता है। तो इसलिए अगर वो मोमिन जो मक्का में थे हिजरत कर जाते तो फिर मुआहिदे को भी ना देखा जाता, ऐसी सूरत में उनकी मदद की जाती। अब चूँकि उन्होंने हिजरत नहीं की, अब हिजरत ना करने का उनका नुकसान ये है कि वो चूँकि मुहाजिरीन मक्का जो मदीना में रहने वाले मुसलमान हैं उन्होंने उन कुफार के साथ मुआहिदा किया हुआ है, इसलिए अब उनकी मदद नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।